मैंने कभी ये खबर पड़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया। तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। कोई मर्द ले जाओ उठा के गैंग रेप करे उसके साथ। हाँ, मुझे पता चले बराबरी होती क्या है भाई, कौन सी बराबरी मांग रही हो। मर्द आपको कभी नहीं आके बताता कि आज मेरे ऊपर क्या बीती है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर था जिसने आपकी स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने ही डिड नॉट डू एनी जस्टिस टू योर स्क्रिप्ट व्हाटसोएवर, आपको रिग्रेट हुआ उसको क्यों दिया? वही बर्ड पैर पकड़ के मुझसे स्क्रिप्ट ली और डायरेक्ट करने के लिए अपने असिस्टेंट को दे दी। Hi guys, welcome to another episode. Today I have somebody a man who needs no introduction whatsoever, a man who wrote Pyare Afzal, who wrote Punjab Nahi Jaungi, is the biggest writer Pakistan has ever produced and has absolutely so many achievements ke batate it would take a very long time, and I have to drum roll because we have Khalil Rahman with here. Assalamu alaikum Khalil sahab, how are you? ये मैंने जिंदगी में पहली दफा किया है। जी मैं दोबारा करें? नहीं फिर क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? I am perfectly alright. You're perfectly alright. How do you feel your film is coming out? Oh, absolutely Santi. Why? You know, it's my first film as a director. लेकिन आपकी वैसे भी इतनी achievements थी, ऐसा क्या हुआ कि आपने? Achievement, I forget the next day, you know, and I think about the next one. You think about next? I always pray for and beg for the next one from Allah the Almighty. I always forget it. I mean every word of it. When I get a hit, I forget it the same night. That's very humble of you. लेकिन ऐसी आपके accordingly आपने बहुत ज़्यादा hits दिए हैं, प्यारे अफजल दे, सबके तुम्हारे देश, पंजाब नहीं जाऊँगी, there are so many things that you've done. आपके according आपका बेहतरीन project कौन सा है? एक सबसे best आपकी नज़र में? Kaaf Kangana. काफ कंगना, क्यों? I love that. लेकिन अभी उसका आउटकम आपके पास आया नहीं है। Outcome is a separate ball game. You know, I don't know, when you love a child, you never foresee what he is going to become and when he grows up. But you love the child. There is no reason. I love Kaaf Kangana. That's my love. लेकिन ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो बेस्ट एग्जीक्यूट हुआ था बाय डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कि आप अपनी स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई हो कि हाँ इन्होंने जस्टिस की है मेरी स्क्रिप्ट के साथ? प्यारे अफजल, मेरे पास तुम हो, मोहब्बत तुमसे नफरत है। एक नहीं है ना, क्या करूं? इन तीनों में से चूज करना पड़े एक तो। नदीम बेग, मेरे पास तुम हो। नदीम बेग मेरे पास, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा जस्टिस किया। Yeah, because it was the most difficult script I have ever written in very easy words. आपने वो जो स्क्रिप्ट लिखा है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट है, ये आपकी ज़िंदगी की असल कहानी है कि? It is not, अल्लाह ना करे किसी मर्द की ज़िंदगी की भी असल कहानी हो, बट जिनकी असल कहानी थी उनको मैंने देखा हुआ है। अच्छा, तो ये भी रियल लाइफ, रियल बेस्ड है? No, it's not the story like that. You know, experience and observation are two different things that help you understand the feel of such person. So when this story came to me, it was my long play that was directed by Sohail Ali Tony Saab, Beopar. Its name was Beopar, and that went on air in 2002. I just made a big version of that long play. That is that. अब ऐसा कौन सा? And even then, when I was about to write that Beopar, the same thing I felt when I was writing Mere Paas Tum Ho. I told the story to my brother. I was in my office and I was about to write. So he was scared, but he said, "Yaar, what a wonderful story. You please write." So after 3 hours when he came, I was just strolling in my room, you know. उसने कहा लिखा नहीं? मैंने कहा यार मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, खुदा गवाह है। और इवन जब मैं मेरे पास तुम हो का आखिरी सीन लिख रहा था, I was weeping in tears. मेरे पास तुम हो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? आपने किसको देख के लिखा और आपके हाथ क्यों कांपे वो लिखते हुए? ये इसलिए it is very close to the heart of the people कि बहुत सारे मर्दों की सच्ची कहानी है
मैंने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया। ऐसे एक पेयर जोड़ा था, और मैंने देखा, और ऐसे कई जोड़े थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शायद कुछ कम कह रहा हूँ। मैंने देखा शादीशुदा औरत जब चीट करती है, बिट्रे करती है, तो वो आंखें नहीं झुकाती, वो डट कर बात करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है किसी दूसरे मर्द का। गैर शादीशुदा लड़की जब चीट करती है तो आंखें झुका लेती है। शादीशुदा मर्द जब चीट करता है तो नजरें झुका लेता है। गैर शादीशुदा मर्द जब चीट करता है तो डट कर बात करता है। मेरा इस एक्सपीरियंस जो है वो जितनी भी खातिन को, मैं हैरान होता हूँ, खातिन को उमूमी तौर पर गुस्सा नहीं करना चाहिए मेरे पास तुम हो पर, जितना मिल मिला के इन्होंने मर्दों को जलील किया है। और दूसरी बात, मैं तो आपकी हिमायत में बात कर रहा हूँ। मैं हर औरत को औरत नहीं कहता, आपको बुरा लगे आपको अच्छा लगे। मेरे लिए औरत के पास एक ही खूबसूरती है, और वो उसकी हया है, उसकी वफा है। वो नहीं है तो मेरी तरफ से साथ सलाम। मैं उनको नॉन वीमेन कहता हूँ, और इस पर मेरे खिलाफ पर्चा करा दीजिए, मी टू का कोई केस करा दीजिए, आई डोंट केयर। बट मैं हर औरत को औरत नहीं कह पाऊंगा। दिस इज़ नॉट ट्रू विद मी एट ऑल। तो मैंने ये चीज़ें देखी, और मैंने मर्दों की जो हालत देखी। एक मर्द जो अपना सारा वकार, अपनी सारी इज्जत, सारी आबरू, सारा जो सरमाया है उसके पास, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रख के उसके लिए काम करने निकल जाता है। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औरतों के ऊपर जो उसके पीछे उस मुट्ठी को खोल देती है। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम फाइटिंग फॉर द गुड वीमेन, क्योंकि वो उनको भी उसी कैटेगरी में जब लिखा जाएगा तो ये उनकी तौहीन होती है। खुदा की कसम, मुझसे ज़्यादा बड़ा फेमिनिस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं है, बट आई गो फॉर द राइट गुड वूमेन। लॉयल्टी औरत का कर्तव्य है, उस पर चैलेंज मत कीजिए। या किसी ने बात करनी है तो खुदा के वास्ते कुरान की वो आयत पढ़ लीजिए कि और मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई है। मैं औरत को बराबरी के हुकूक देता हूँ, पर ज़रा नीचे नीचे। आई एम शेकिंग, स्ट्रेट अप शेकिंग। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली पूछा, कोई 4-6 महीने पहले, कोई फेमिनिस्ट ग्रुप था, हाँ, बराबरी के बारे में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, आपने ये खबर पढ़ी है अक्सर कि 5 मर्दों ने मिलकर एक लड़की अगवा कर ली? कहते पढ़ी है। मैंने कभी ये खबर पढ़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया? तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। अच्छा, अगवा कर ले किसी को? कर ले मुझे पता चलेगा ये बराबरी कर रही है। आए कोई बस लूटे, कोई मर्द ले जाए उठा के, गैंग रेप करे उसके साथ। हाँ, मुझे पता चले बराबरी होती क्या है। भाई, कौन सी बराबरी मांग रही हो? मैं तो इस बात पे परेशान हो गया हुआ हूँ। आपका प्रॉब्लम यह है कि हम मर्दों ने इतनी चालाकी से आपके हुकूक को सलब किया है कि आपको पता ही नहीं चला आपके राइट्स हैं क्या। तो आप बजाय इसके कि अपने राइट्स का पता चलाएं, आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांग रही हैं। वो नहीं मिलेगा आपको। आप शॉर्ट पहनेगी, ये परमिशन आपको कभी नहीं दी जाएगी, सब कॉन्टिनेंट में कभी नहीं दी जाएगी। और वो चंद एक लड़कियां हैं, चंद एक ग्रुप है जो ये नारा लगाएगा, मेरे खिलाफ ट्वीट कर देगा कोई 20-2500। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप मर्द की गैरत की फितरत को नहीं बदल सकती। दिस इज इम्पॉसिबल। माशरा एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कोई कोलैप्स। तो बेहयाई तो औरत को डिफाइन ही नहीं करती। यू बिलोंग टू नो बॉडी देन। मर्दों पे उंगलियां उठाना, वो जनाब ये करता है। मैं और आपा सुल्तान आपा बैठे हुए, खलील तुम मर्दों के खिलाफ नहीं लिखते हो। मुझे कहते हैं, मैं क्या आपा मुझे बताओ मर्दों के खिलाफ अब क्या लिखूं? मैं गाली दे दूं मर्द को? मैं उस खबीस, उससे बड़ा खबीस कोई नहीं है, बताओ इसके बाद क्या लिखूं? नहीं, ये क्या बात हुई? वो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, मर्द तीसरा फेर चला लेता है। मैं किसके साथ चलाता है? ना मना कर दो सब, हम नहीं चलाएंगे भाई।
मुझे बताइए, मर्द से खौफ किस बात का है? दूसरी औरत का, तो दूसरी औरत है ना। आप भी नहीं बाज आनी है तुसी, उन्होंने ब्लेम करी जा रही हो। हाँ, मैं आपको बता रहा तो हूँ, फिर मर्द से खौफ किस बात का है? औरत का, लॉयल्टी तो फिर दोनों साइड से एक्सपेक्ट करनी चाहिए यार। मैं जो आप उस फिलॉसफी को समझिए पीछे। मर्द से उसकी बीवी को खौफ किस चीज का है? दूसरी औरत को। तो दूसरी औरत मर्द तो नहीं है। that is given. तो फिर मुझे बताइए, सारे मिलकर बर्बाद भी करी जा रही हूँ तो गल्ला भी करी जा रही हूँ। लुक एट इफ मैन इज लुकिंग एट यू और यू डोंट रिस्पॉन्ड, तू सकी भैन। मर्द के पास इनकार करने की काबिलियत नहीं होती, औरत के पास, अच्छी औरत के पास इनकार करने की काबिलियत होती है। ये फर्क है दोनों में, ये कभी खत्म नहीं होगा। So, आपके इस थीम के अकॉर्डिंग जो अभी ये सारा स्कैंडल मोहसिन अब्बास हैदर वाला चला है, नहीं, मैं मोहसिन अब्बास को तो खैर डिस्कस नहीं करना चाहता। नहीं, like not discussing it. So you think that's like the other woman's fault, just for the sake of me asking it? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बड़ी बुरी तरह आकर कर रही हैं हमारे माशरे में। ये तो एक पार्ट था जो मैंने आपको डिस्कस किया, ये था उस फिलॉसफी पर जिस पे आप मर्द को गाली दे रही हैं। अब यहाँ पर आती हैं दूसरी चीज़ें कि मर्द दूसरी औरत की तरफ जाता क्यों है। सबसे पहले डिससेटिस्फाइड मैरिज, अनसेटिस्फाइड मैरिजेस, क्या है, डिजायर्ड मैरिजेस जो पेयर्स बने। दूसरा, जब पहली दफा मर्द देखता है जाके औरत को 50,000 का मेकअप करा के आई होंगी, जो ब्याह कर लेंदा तो दरवाजा खोल दिए तो कुछ और निकलता बिचो। दैट्स अ फैक्ट। आप जो हो ना वही मंजन बेचो जिसके साथ मैंने उम्र गुजारनी है। उम्र मैंने आपके साथ डेपिलेक्स के मेकअप के साथ नहीं गुजारनी। दिस विल बी ओनली वंस इन अ ब्लू मून कि आप जाएंगी 50,000 का मेकअप कराएंगी, अपने असल मुंह तक कटो। आपको कैसे पता मेकअप कितने का होता है? जस्ट मैं आई एम इनटू द बिजनेस ना। मैं मेरे ऑन अ लाइटर नोट। हाँ, तो वो उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक आदमी जो सुबह निकलता है घर से कमाने के लिए, और आपको नहीं पता मर्द कितना जलील होता है। मर्द आपको कभी नहीं आके बताता कि आज मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरे बॉस ने किस तरह मेरी पतलून उतारी, मुझे फलां बंदे ने रास्ते में गाली दे दी, मुझे हिट किया फलाने ने, मुझे फलां ने धमकी दी कि इस तरह काम करोगे तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, वो जब घर आए और उसको 2 घंटे लेट हो जाए, ट्रैफिक देखते हो, और उस पर शक किया जाए, ये बर्बादी शुरू होती है। अब ऐसा कौन सा डायरेक्टर था जिसने आपकी स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने ही डिड नॉट डू एनी जस्टिस टू योर स्क्रिप्ट व्हाटसोएवर, आपको रिग्रेट हुआ कि इसको क्यों दिया? फाइन बर्नी, he did do it himself. He got it done. उसने पैर पकड़ के मुझसे स्क्रिप्ट ली और डायरेक्ट करने के लिए अपने असिस्टेंट को दे दिया। और फिर वो सारा तो उसका नाम था मेरा खून हुआ था और उसमें मेरा खून हो गया था। That's just really sad. काफ कंगना लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी आपके, और आपने ये मूवी डायरेक्ट? काफ कंगना के पीछे बड़ी लंबी इंस्पिरेशन है। मैं पहले भी एक ही इंटरव्यू मैंने कहा, आज मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं 1947 के बलवों में शहीद हो गया था, मारा गया था। मैं चूँकि इतना मजहबी ज़रूर हूँ कि दूसरे जन्म को नहीं मानता, बट आई हैव द फीलिंग परहैप्स किसी तरह से आई हैव टेकन अ बर्थ अगेन टू राइट दोज थिंग्स। मेरे सामने लगता है मुझे हो रही हैं ये सब चीज़ें, ये सारा वाक़या ऐसे लगता है। लोग अभी भी पूछेंगे, ये फिल्म लगने के बाद भी पूछेंगे, क्या ये सच्ची कहानी है? तो मुझे लगता है ये सच्ची कहानी है। आई हैव द फीलिंग लाइक दिस। फिर उसमें एक और चीज़ थी बड़ी, मेरे बड़े ख्वाजा साहब के बड़े दोस्त हैं, वो दोस्त प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे अचानक एक दिन फ़ोन किया, बाबू जी इंडिया से एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर आ रहा है, हम 50 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं बाबू जी। तो मैंने कहा अच्छा, तो बाबू जी आपने 1 बजे कल पहुंच जाना है बाबू जी, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, 1 बजे पूरा पहुंच जाइएगा। मैंने कहा सर 1 नहीं 1:30 बजे। 1:30 बजे क्यों? मैंने कहा आधा घंटा इंडिया के लिए एरोगेंस।
तो कहते बहू जी 1:30 बजे आप पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगले दिन मैं वहाँ जाने के लिए जल्दी उठ गया तो देखा फ़ोन आ रहा था उनका। मैंने फ़ोन उठाया, पूछा तो कहने लगे कि बहू जी वो आज मीटिंग कैंसिल होगी। मैंने कहा क्यों? बहू जी वो असल में ना वो अपने त्यारे पर आना चाहता है, अपने प्लेन पर आना चाहता है पाकिस्तान। मैंने कहा साले की इतनी ईगो है। तो बहू जी ये 5-6 दिन लग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेट हो जाएगी इजाज़त देने में, तो मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा, एंड ही टुक अबाउट 6 days। और उन्होंने अल्टीमेटली परमिशन ले ली और एक दिन मुझे फ़ोन आता है तो ही वॉज हैप्पी लाइक एनीबडी। तो मैंने कहा क्या आप प्लेन में बैठे हुए? मैं कहते या। मैंने कहा अच्छा। तो बहू जी हम 11:30 बजे लैंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप 1 बजे पहुंच जाइए। मैंने कहा 1 बजे नहीं 2 बजे। बहू जी ये क्या बात हुई? मैंने कहा देखिए जनाब 1 घंटे का मार्जिन दीजिए मुझे। उसकी इतनी ईगो है कि वो अपने अब सादा फ्लाइट पर उतर नहीं सकता, तो मैं तो सादा फ्लाइट पर पहुंच रहा हूँ, 1 घंटा दे दीजिए मुझे। मैं चला गया। तो मेरा ज़िंदगी में एक थीसिस था जब शुरू से, जब मैं ये टेंशन देख रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मैं अज्यूम करता था कि परहैप्स हमें जो मासेस जो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे बीच में बहुत गलत फहमियाँ हैं, हम हेट्रेड के की पाताल में गिर रहे हैं। तो वाई नॉट टू पुट द गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 countries aside and let the masses of the 2 countries interact। इंटरेक्शन से दोस्तियाँ डेवलप होंगी, ताल्लुक डेवलप होंगे और वो इवेंचुअली एंटेल करेंगे कि टेंशन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विद विच आई वाज लिविंग। तो दैट मैन gave me a thesis equal to my thesis. He was saying and I was feeling it like I have given my words in his mouth. I never say I got impressed by anybody, but I got impressed. I was impressed by that man. 40 minutes की उस तकरीर में उसने बताया, sir, to hell with the governments of the 2 countries. Let the masses interact with each other. That is the point where we can eliminate these tensions between 2 countries. There will be love, there will be relationship, there will be amity between the 2 countries. And that will propel us towards that destination which we want to achieve by either war or talks. I was surprised. My God, sir, I will write the film for you. Then lunch. लंच करने के लिए हम ये साथ ही डाइनिंग टेबल था, लंच करके आए हैं। तो ही हैड अ सिगार, कश लिया उसने। कहता बहू जी इफ़ यू डोंट माइंड तो आई हैव अ स्टोरी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मुझे आंखों में रिक्वेस्ट की कि आपकी मेहरबानी सुन लीजिए। लेकिन और जब मैं सुनता हूँ तो पूरे ईमान के साथ सुनता हूँ कि मैं भी अच्छा हो तो मैं आई विल गो फॉर दैट। तो सुनिए जो स्टोरी उन साहब ने इन 2 मुल्कों के इंटरेक्शन, मासेस के इंटरेक्शन के बारे में, मोहब्बत क्रिएट करने के बारे में ये बताई मुझे। कहते हैं कि बहू जी एक अपना रॉ का एक एजेंट है, वो इंडिया से मिशन पर पाकिस्तान पहुंचता है। ही क्रॉसेस द बॉर्डर इलीगली। कैसे? मैंने कहा वो तो बहू जी आप राइटर हैं ना। अच्छा मैंने तो बहू जी ही इज हिज मिशन इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मैंने कहा तो देन एंड ही एंटर्ड इन द हाउस। मैंने कहा वो कैसे? वो तो बहू जी आप राइटर हैं ना, आप लेके आएंगे। अच्छा मैंने कहा ले आया हूँ। फिर कहते when he was about to accomplish the mission, he came across the daughter of the Prime Minister and he fell in love with her. Then मैंने बस बहू जी आप उसने लड़की लेके जानी है। कैसे? मैंने वो तो बहू जी आप राइटर। आप राइटर? पारा मेरा चढ़ गया। मैंने कहा जब मेरे दोस्त मेरी तारीफ करते तो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते, तो क्या कहा इन्होंने जब मेरे बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा रहे थे? तो इन्होंने कहते हैं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में आप सबसे बड़े राइटर हैं। अच्छा मैंने कहा श्योर, यही फिक्रा कहा? तो उन्होंने मुड़ के मेरे दोस्त की तरफ देखा और फिर रिकन्फर्म किया कि यस यही कहा। मैंने कहा याद कीजिए कहीं ये तो नहीं कहा कि खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा दल्ला है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, यूसुफ रज़ा गिलानी है मेरा प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट लाइक हिम, बट वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है पाकिस्तान का, उसकी बेटी मेरी बहन है, माँ की आँख,
कोई इंडियन आ जाए बॉर्डर क्रॉस करके एंटर हो और लेके जाए उसे, ये तो आप बाइस बात करें। मैंने कहा अच्छा चलिए ओके, मैं बाइस बात नहीं करता, मुझे आपकी कहानी पसंद आ गई, वाह व्हाट अ स्टोरी। अब मैं इसको लिखता हूँ वैसे, ISI का एक एजेंट गया, बॉर्डर क्रॉस किया, कैसे, वो मेरा काम है, आई एम राइटर। ही हैज हिज मिशन टू एंटर इनटू द प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ इंडिया, वो कैसे एंटर हुआ है मेरा काम है। When he was about to accomplish the mission, he came across the daughter of the prime minister and he fell in love with her. अब उसने लड़की लेके आनी है जनाबे वाल मन, खुदा की कसम आधा इंडिया आके बॉर्डर पर लड़की दे के ना जाए ना तो मेरा नाम खलील रहमान कमर नहीं है, थूक दीजिएगा मेरे मुंह पर। मिनट एक मैंने एक और थी, stood up and said I will not write the film for you. तो वो चीज़ मेरे अंदर रह गई कि मुझे लगा कि ये लोग नहीं बाज आ सकते, इनको रिप्लाई बैक करना पड़ेगा। एक डायलॉग था इनका जो मुझे साल हर साल से काट रहा था, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। मैं उसका जवाब देना चाहता था, मैं बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि फिल्म हिट हो जाए एंड आई शुड बी हैविंग फाइनेंसेस इनफ टू डू द थिंग्स। फिर मेरा वादा रहा ये जो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे उससे दुगना बड़ा जवाब दूंगा इनको। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एक मूवी लोफर भी है, लोफर भी, जो आपने हुमायूं सईद को दे दी थी, बट अब उसके अंदर आपके बेटे ने कास्ट करना है, आपने वो स्क्रिप्ट वापस कैसे ली? उसमें मैं आप अर्ज़ करता हूँ कि एक ज़माने में गलती हुई बहुत शदीद इनसे, उस पर मेरे कोई 10-12 महीने ज़ाया हुए थे। पंजाब नहीं जाऊँगी मैं अचानक जब मैंने फिल्म लिख ली इन अबाउट 1 मंथ, 15 नवंबर 2016 परहैप्स या 15 ऐसा ही है कुछ, 17 में रिलीज़ हुई, 16 था या 17 था, 15 था। तो अचानक ये दोनों मेरे पास आए, नदीम और हुमायूं, और इन्होंने कहा कि फिल्म में बल्गेरिया डाल दीजिए। मैं बल्गेरिया कैसे डाल दूँ, मैं तो एक मजाक कर रहा, नहीं वो डाल दें खलील भाई, बल्गेरिया डाल दें। मैंने कहा फिर इसका नाम पंजाब नहीं जाऊँगा तो नहीं ना रहेगा, फिर इसका नाम हो जाएगा पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। सो वट, ये जवाब आया मुझे नदीम बेग की वजह से तरफ से, और उस वक्त उसकी नई फिल्म हिट हुई थी जवानी फिर नहीं आनी। मैंने कहा मेरा यार पागल हो गया है इतनी शोहरत से तो मैंने बहुत डांटा वाटा भी और मीटिंग ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे लगा कि ये तो अड़ गए, ये इस तरह अड़ गए कि एक दिन मुझे बाकायदा हाथ जोड़कर मिन्नत की गई कि उस वक्त बल्गेरिया से हम रोमेनिया पर आ गए, और मैं मान गया और मैं रोमेनिया गया। 10 दिन की हमने रैकी की वहाँ, -20-22 सेंटीग्रेड में, और उस फिल्म ने मेरे लिखने में 5.5 महीने मैं कोशिश करता रहा कि इसमें रोमेनिया डाल दूँ। मैं डालता था निकालता था, वेस्टेड माई 5 months। और फिर वन डे आई रिफ्यूज्ड, मैंने आप कोई और फिल्म नहीं पाती। तो क्या हुआ, मैंने कहा मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, मैं रोमेनिया नहीं डालूंगा। तो ना डाले ना। आई वॉज लुकिंग एट हिम लाइक दिस, मैंने कहा अच्छा। वो एक पड़ा हुआ था टिश्यू पेपर का डब्बा, मैंने उठा के मारा। तो 5 महीने वो ज़ाया हुए, कोई 4 महीने इसकी कास्टिंग में ज़ाया हुए, क्योंकि इमीडिएटली ये मैं भी शजाद को लेने के लिए तैयार नहीं थे। अगर माहिरा खान करती तो कैसा करती? नहीं, ये रोल ही मैं भी शजाद करता। आप मेरे इस इंस्टिंक्ट को कभी चैलेंज ना कीजिएगा जो मेरा एक्टर के। I've heard कि she was the one who was under consideration पहले। मैंने 3 मीटिंग्स की उसके साथ, मैं उस पर मान गया था, लेकिन मैंने उसको बताया माहिरा को खुद। मैंने कहा माहिरा देखो, यू आर नॉट माई फर्स्ट चॉइस एट ऑल, बट दीज 2 people वांट यू शुड बी देयर। इट वाज आफ्टर ईमान को हमने निकाला था। अच्छा, वो ईमान पर तो मैं किसी कीमत, वो तो जंग हो जाती ना, वो तो फना फिल्ला हो जाता काम। कोई ईमान के लिए वो रोल नहीं था। ईमान बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, could do any other good project very nicely, but that role was not meant for Iman Ali at all. That role was meant for महविश शजाद। और आप मुझे बता दीजिए क्या ये साबित नहीं हुआ? महविश won
इमीडिएटली। तो वो 10 महीने मैंने कहा एक, अगर तुमने लोफर में एक जगह इन्होंने कहा यार ये तो खलील साहब हीरो नीचे लग गया है, वो पहले अच्छा। तो मैंने स्क्रिप्ट उठाई, मैंने कहा फिर जितने उत्ते लगता जो वो तो करा लो जाके क्योंकि अब वक्त ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। उसी वही फिल्म बनी, फिर याद रखिएगा, जो मैं 15 नवंबर को छोड़कर गया था उसमें एक लफ्ज की चेंज नहीं हुई और वही फिल्म बनी है। तो इतना असर पाने का फायदा क्या हुआ? वो दिमाग में खन्नास आ जाना, वो आ जाते हैं ना। शोहरत एक दफ़ा तो मारती है आदमी को, आदमी में ज़र्फ कम होता है, शोहरत ज़्यादा मिल जाती है। तो अब तो खैर वो कंट्रोल्ड है माशाल्लाह, अब वो गोइंग गुड होपफुली। आप उनके लिए एक और स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं? मैं उनके लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, लिखूंगा। लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, ये झगड़े चलते रहेंगे उनके साथ। इशू ये है कि अब इंटरफेरेंस जो है इस तरह का बर्दाश्त नहीं होता कि ऑलरेडी मैं उनसे दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस, दोनों का कुल एक्सपीरियंस जो ना फिल्म इंडस्ट्री का, वो मेरे अब क्रिएटिविटी को अलादा रहने दीजिए, वो मेरे तजर्बे के बराबर है। तो टॉक लेस डू मोर डिलीवरमेंट, दैट्स इट। तो जो लंदन नहीं जाऊंगा का स्क्रिप्ट है वो भी आपने हुमायूं के लिए लिखा है, तो वाज दैट एन एक्सचेंज फॉर लोफर या तो आपने वैसे ही लिखा है? और वो सीक्वल है पंजाब नहीं जाऊंगी का, क्या लिंक है दोनों का? नॉट टू बी डिस्क्लोज। मैं सीक्वल खलील रहमान कमर नहीं लिखता, ना लिखूंगा कभी। सीक्वल नहीं, तो नाम इतना सिमिलर क्यों है? नाम जो राशिदा खालदा दो इलाज एक ही नाम, क्या बात हुई? लेकिन वजन में बराबर है। अच्छा लगा मुझे, नाम मेरा नहीं है, इनका ही है। वन फाइन मॉर्निंग दे फोन मी एंड टेल खलील साहब लंदन नहीं जाऊंगा, एंड आई लव दैट। कैची नाम है, मासिस का नाम है। बिफोर आई एंड दिस एंड रैप दिस अप, मैंने बूमरैंग बनाना, उससे पहले मैंने आपसे ये पूछना है कि आपका गाना जो आपने लिखा था ज़रूरी था, वो बहुत फेमस हुआ था, उस गाने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, क्या बैक स्टोरी थी? ये गाना मेरे भाई ने मेरी एक सीरियल डायरेक्ट की थी, अनसुनी। उसका थीम सॉन्ग था, उसका ओएसटी था। और ये हुआ ये कि मैं ओएसटी लिख नहीं रहा था, कराची में शूट हो रहा था। तो कोई एक दिन मैं बार साजिद हसन इसके प्रोड्यूसर थे, तो उनको बार टाल देता था मैं कि अच्छा, और टाल के देता था, आई मेंट इट। वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं यार किसी दिन में लिख दूंगा, क्योंकि मैंने करवाना होता था गाना। तो एक दिन दोपहर को मैं सदके तुम्हारे लिख रहा था, तो नॉक हुआ, वो बेल हुई दरवाजे पर। मेरा भाई छोटा वहीं था, उसने दरवाज़ा खोला तो साजिद हसन वाज ऑन डोर। वो शॉर्ट पहनी हुई और बुनियान नुमा एक टी शर्ट पहनी हुई, हाथ में सिगरेट। तो अंदर दाखिल हुआ और आके फर्श पे लेट गया और सिगरेट पी रहा, लेटा हुआ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता वो मैं शकीला को बोल कर आया हूँ आज या गाना आएगा या मेरी लाश आएगी, शकीला भाभी का नाम। मैंने कहा वो शर्म कर यार, 2:30 बजे का वक्त है, इस वक्त तो मैं चाहूँगी तो मुझे आमद नहीं होने वाली है। नहीं किस, और लेटा हुआ है वो, किस वक्त होगी तुझे आमद? मैं शाम होगी तो कोई सिलसिला शुरू होगा। हाँ तो ठीक है ना, जब तुझे सिलसिला शुरू हो तो मैं उठ जाऊँगा। मैंने तब तक तू लेटा रहेगा। मैंने बड़ी मिन्नतें की, समझाया, और ये भी कहा अच्छा उठ जा, तेरी कसम है मैं शाम को लिख दूंगा गाना। कहता नो एतबार नहीं करूँगा तुम पर। मैं बहुत सारी बहस के बाद मैंने कहा अच्छा यार फिर लेटा है। तो मैं जाके फिर बैठ गया, लिखने लग गया। लिखने लगा ना तो मुझे याद आया कि शर्म कर खलील रहमान कमर, ये फिक्रा मेरे अंदर पहला आया। होता ये था जब मैं बैंक में था तो मेरी वीकली मीटिंग्स होती थी, फोर्टनाइटली मीटिंग होती थी स्टेट बैंक के साथ। तो अक्सर मुझे जहाज़ में एक्टरों से आमना सामना होता था। आई वाज सो एरोगेंट, आई नेवर लुक्ड एट एनी एक्टर, बट दिस वाज द मैन जिसको मैंने 2 दफ़ा मुड़ के देखा और 2 दफ़ा छुप के देखा। दिस वाज साजिद हसन। तो मैंने कहा, दिल में ख्याल आया कि शर्म कर खलील रहमान कमर, जिस आदमी को तो मुड़कर देखा फिरता था आज तेरे फ्लैट के फर्श पर लेटा हुआ है। खुदा की कसम जब ये बात आई मेरे जहन में, उसी दम मेरे अंदर अस्थाई आई, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था,
ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़ आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। ये मैं लिख चुका था उस वक्त। मैंने कहा उठ हो गया, इस तरह कहता तू बकवास कर। मैंने कहा सुन तो सही यार। उठाया, सुनाया, एंड इट टुक 25 मिनट्स एंड आई हैड रिटन द होल सॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले जो 2 अशार थे, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में, आई वाज इन 9th दैट टाइम। I will cry. I will legitimately cry. This is so emotional, but this is so heavy for my heart, this entire thing. But khair. Okay. Good. That was really nice. So that song was a huge success. बहुत बड़ी hit थी ये गाना. तो ये story थी. So you wrote it in 25 minutes. 25 मिनट्स। That's मेरा उससे highly मुंह impressive. चूमा, इतना मुंह चूमा उसने साजिद हसन ने कि आप सोच नहीं सकते। Well, अच्छा. Ending this on a lighter note, मैं बूमरैंग बनाने लगी हूँ. आपका अपने प्रोजेक्ट्स में से आज तक का फेवरेट डायलॉग कौन सा है? फेवरेट डायलॉग, स्ट्रेट अप फेवरेट, आपका अपना. यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, इसीलिए मैंने मैं पूछा. आपको बता देता हूँ। औरत जब गिरती है ना, तो चोट उसके मर्द को लगती है। That is the line. That is the line. Mine is help me Durdana. I will No, not no, lie. Help me Durdana is not a line. वो तो एक But help me Durdana is something that I use in my everyday life. So that would be the हाँ. favorite thing that I've ever heard. You written. नहीं, Like वो- बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी, लेकिन that is my favorite. I That would is say. my favorite. लेकिन उसका लाइन के बारे में मैंने कहा चंद कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में I was that pretty sure कि they are going to be biggest hit. उसमें ये हेल्प मी दुर्दाना थी। और आज आपको एक और बात बताऊँ, सारी पब्लिक ऑफ फिल्म हिट हो चुकी है। नदीम बेग ने पूरा 1 महीना कोशिश की कि मैं ये लाइन निकाल दूँ, हेल्प मी दुर्दाना। Help me Durdana. या एक दिन मैंने चीखा, इतनी बुरी तरह चीखा। मैंने कहा बात सुने फलां फलां, मैं और तू दोनों फेल होंगे, नाकाम हो सकते हैं, ये लाइन हिट हो जाएगी। और मुझे हुमायूं का मैसेज मैंने रखा हुआ है। जब ये हिट हुई, लाइन भी हिट हुई, तो उसका मुझे मैसेज आया कि इट वाज यू खलील साहब ओनली हु न्यू इट वाज अ बिग हिट। वो आई न्यू इट अल्हम्दुलिल्लाह। दुर्दाना का नाम आपने रखा था? सारे नाम मैं रखता हूँ। दुर्दाना का नाम दुर्दाना क्यों था? वैसे ही अच्छा लगा मुझे, बोलने में भी अच्छा था। Help me Durdana. हेल्प मी दुर्दाना। अच्छा, best है. Sounds अच्छा. good, ना? Now we're going to make a boomerang. अच्छा, what do you want to do? What is the? आप वो मैं कर मुस्कुराए रही नहीं है. हाँ. आप मुस्कुराए दें boomerang में. Because why I am scared. I am scarred for life. No, इतनी no, बात don't be scared of me. I am not scared of you, but let's just. Can you like smile? Okay. कैसे like, स्माइल करूँ? जैसे मर्जी आपका दिल करे, आप जो मर्जी करें. I will not say. That's the good thing which I commonly do. What? Smile? Okay. Oh, okay. Let's do it. 1, 2, 3. That's done. So, thank you so much for being here. It was an Thank you. absolute honor talking to you and sitting Thank with you you very here. much. We had Khalil Rahman Kamar with us with his upcoming movie Kaaf Kangana. Be sure to watch it. And thank you so much for being here. Thank you very much for calling. Allah Hafiz. Inviting.